Hello everyone, welcome to Software Engineering 1. Now in Software Engineering Unit number 5, today I am going to explain you software design concept. Now following are some software design or system design concepts like abstraction, refinement, modularity, software architecture or structure design, control hierarchy or program module, data structures, सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स और इंफॉर्मेशन हाइडिंग. ठीक है, इन दैट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंसेप्ट एंड दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन. नाउ abstraction let a designer to focus on solving a problem without being concerned about the inner level detail, or we can say lower level detail. It means abstraction means, for example, there is one process. You all know about what is input, what is output, but we don't know about the inner process, that lower level detail of this module or this process. ठीक है, इनपुट है, इनपुट हमने एंटर किया, आउटपुट आ गया, बट लोअर लेवल में जो प्रोसीजर होती है, ठीक है, प्रोसीजर प्रोग्राम कौन सा यूज होता है वो हमें पता नहीं है. ठीक है, सो इन वी कैन से दैट इन अदर वर्ड एब्स्ट्रैक्शन इज इग्नोरिंग इनसिग्निफिकेंट फैक्ट एंड फोकसिंग ऑन की एट्रीब्यूट ओनली. इनपुट एंड आउटपुट पे ही फोकस करता है. ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्शन इज अ एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फ्यूचर without including the background details or explanation, right? हमें सिर्फ इतना ही पता है इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है. वी डोंट नो अबाउट द बैकग्राउंड, लोअर लेवल डिटेल, हाउ दिस आउटपुट कंप्यूट. ओके, वी डोंट नो दैट. सो हमें सिर्फ फ्रंट एंड जो फ्रंट डिटेल है वही पता है, हमें बैकग्राउंड नहीं पता है. ठीक है, सो वाई वी यूज दिस एब्स्ट्रैक्शन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट अलाउ एफिशिएंट डिज़ाइन. सो अगर हमें डिटेल में नहीं जाना है, एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो हम एफिशिएंट डिज़ाइन, एरर फ्री डिज़ाइन जो है बना पाएंगे. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन इम्प्लीमेंट द कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑल्सो. इन शॉर्ट, IEEE define abstraction as a view of a problem that extract the essential information relevant to a particular purpose and ignore the remainder of the information. That is abstraction. Now here I mention 3 type of abstraction. First one is procedural abstraction. Now in procedural abstraction, in that the sequence of instruction that has exit and limited function. For example, if I have one procedure, or we can say module, if I have a module like in library management system issue book module. Okay, so here simply I said issue book module, but following these module there are some steps like student request for book, then library check that book is available in library or not, then librarian also check कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर कितनी बुक इश्यू हुई है. ठीक है, अगर ऐसा रूल है 3 से ज़्यादा बुक इश्यू नहीं हो सकती तो फिर नहीं होगी. ठीक है, और अगर सारे क्लियर है, सारे रूल्स क्लियर है तो लाइब्रेरियन जो है वो बुक को इशू करेगा. ठीक है, तो इतने स्टेप्स है, बट हम सिर्फ क्या लिखते हैं, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट, सिर्फ नेम like issue the book, but we don't know about all the sequential steps, right? That is the procedural abstraction. Then second one is data abstraction. Now as I said, data abstraction is collection of data and that describe the data object, particular entity or data एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक हमने ER डायग्राम में देखा था कि एम्प्लॉय की एट्रीब्यूट्स होते हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट. सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एंटिटी. Okay, clear? For example, if I said door is a one data object, or we can say employee is a data object, then employee के characteristics क्या होगी,
एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, लाइक दैट. ओके. नाउ थर्ड one is control abstraction. Now, like procedural and data abstraction, control abstraction implies a program control mechanism without specifying internal detail. Particular program को कंट्रोल करता है. प्रोग्राम में लाइक मॉड्यूल में सब मॉड्यूल होते हैं, सब मॉड्यूल्स में भी प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, तो वो प्रोग्राम को कंट्रोल करता है एंड इट डज नॉट स्पेसिफाई द इंटरनल डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी प्रोग्राम. दैट abstraction is called as control abstraction. Now second design concept is refinement. Refinement जो होता है, like we can say that abstraction and refinement are complementary concept. Like abstraction allow a designer to state a procedure and data and hide the lower level detail. ठीक है, बट रिफाइनमेंट क्या करता है, इट हेल्प डिज़ाइनर टू डिस्क्लोज लोअर लेवल डिटेल एज डिज़ाइन प्रोसेस. ओके, वो डिस्क्लोज करता है लोअर लेवल डिटेल को. इट मीन्स मॉड्यूल जो है उसको सब मॉड्यूल में कन्वर्ट करता है, उसको डिवाइड करके सब मॉड्यूल में लेके जाता है. देन सब मॉड्यूल टू प्रोसीजर एंड प्रोसीजर टू प्रोग्राम. ठीक है, पूरे हिरार्की में हम लो लेवल तक, लास्ट नोड तक जाएंगे. ठीक है, सो इन दैट डिज़ाइनर प्रोवाइड consecutively more detail for each and every component. It means for each and every modules, right? And this refinement is top down design strategy. Okay, fine. Now here stepwise refinement ultimately represent divide and conquer approach. It means particular module को divide करो, divide करो, divide करो. ठीक है, then in other word we can break a complex object into smaller more manageable piece. ठीक है, it means complex module. object means यहाँ पे हमें क्या consider करना है, complex module और complex system को small small module में divide करना. then small module can be divided into sub module, then sub module can be divided into procedure and procedure can be divided into program, right? So that can be, so complex system को हम smaller part में divide करते हैं. ठीक है, now we can perform refinement in this way. like first level पे हम क्या देखते हैं, system. it representing the overall प्रोडक्ट टू बिल्ड, पूरा सिस्टम. ठीक है, फिर सेकंड लेवल पे लाइक ज़ीरो लेवल DFD में क्या होगा, हम रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रोसेस में पूरी सिस्टम. फिर फर्स्ट लेवल पे क्या होगा, वो सिस्टम के हम मॉड्यूल लिखेंगे. ठीक है, वैसे ही लेवल 2 पे यहाँ पे क्या आएगा, सब सिस्टम आएगा एंड दे रिप्रेजेंट द बिजनेस प्रोसेस एसोसिएटेड विद द सिस्टम. ठीक है, उसकी सब सिस्टम. देन लेवल 3 पे आएगा प्रोसीजर्स representing the workflow of each subsystem. प्रोसीजर मतलब और डिटेल में वर्क फ्लो, कौन से डेटा का फ्लो कहाँ जा रहा है. ठीक है, नाउ यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो 2 टाइप की होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्यूटर. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो पर्टिकुलर यूज़र जो है वो प्रोसीजर हैंडल करता है वो. और सेकंड वन इज़ कंप्यूटर. इट मीन्स जो प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिक है या यूज़र ने हैंडल की है. ठीक है, देन प्रोसीजर इज़ सब अगेन डिवाइड इनटू प्रोग्राम्स एंड इट रिप्रेजेंट द प्रोग्राम्स नीडेड टू एग्जीक्यूट ईच कंप्यूटर प्रोसीजर. ओके, जो पर्टिकुलर स्टेप अकम्प्लिश करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको प्रोग्राम बोलते हैं. दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, सो यहाँ पे वन सिस्टम इज डिवाइड इनटू सब सिस्टम, देन प्रोसीजर्स एंड देन प्रोग्राम, राइट? सो हियर ऑल द सिस्टम्स आर decomposed in top down manner and implemented in bottom up. Now implement करेंगे तो मतलब अगर हम सिस्टम बना रहे हैं तो पहले स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम बनाएंगे, फिर इस प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके एक प्रोसीजर बनेगा, फिर प्रोसीजर को इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, मॉड्यूल, एंड सारे मॉड्यूल को इंटीग्रेट करेंगे तो सिस्टम बनेगा. ठीक है, तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बॉटम अप मैनर में, लेकिन हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो टॉप डाउन मैनर में डिज़ाइन होगा. ठीक है, नाउ
थर्ड वन इज मॉड्यूलरिटी. थर्ड डिज़ाइन कंसेप्ट इज मॉड्यूलरिटी. इम्पॉर्टेंट है. मॉड्यूलरिटी इट मीन्स मॉड्यूल. ठीक है. सो इट इज़ द स्केल और डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर कैन बी अंडरस्टूड by examining its component independently of one another. ठीक है. लाइक सब सिस्टम में जितने भी मॉड्यूल है उसको हमें इंडिपेंडेंटली हैंडल करना है पहले. ठीक है. पहले से अगर इंटीग्रेट करते जाएंगे, सपोज़ हमने लॉगिन बनाया, उसके साथ इंटीग्रेट किया रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन के होने के बाद हम होम पेज व्यू करेंगे या तो फिर बुक इश्यू करेंगे. ठीक है. तो ऐसा हमने इंटीग्रेट पहले से ही करते गए तो सॉफ्टवेयर जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. फिर एरर कौन से मॉड्यूल में आती है वो समझ में नहीं आएगा. ठीक है. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमने सारे मॉड्यूल डिफरेंट लाइक पहले लॉग इन, फिर बुक इश्यू, बुक रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, ऐसे सारे मॉड्यूल हमने इंडिपेंडेंटली बनाए और फिर एंड में इंटीग्रेट करेंगे तो वो इजी रहेगा. ठीक है. सो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंसेप्ट मॉड्यूलरी स्टेट दैट सॉफ्टवेयर इज डिवाइड इनटू सेपरेटली named and addressable component often called module. It means this software is divided into small component and that component is called module and उसको नाम भी दिया जाएगा. ठीक है. और उसके related component भी उसमें include कर दिए जाएंगे. ठीक है. Now modular design is one approach that subdivide a system into small part and that part is called as module, right? And that module can be independently created as I said and then used in different system to drive multiple functionality. ठीक है. अगर हमने एक बार लॉगिन मॉड्यूल क्रिएट कर दिया है तो हम कितने भी वेबसाइट बनाए हम उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है. बार बार वो मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ हियर मॉड्यूल, व्हाट इज़ मॉड्यूल? यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट की है. लाइक मॉड्यूल इज़ अ नेम एंटिटी, राइट, एंड इट कंटेन इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग लॉजिक एंड डेटा स्ट्रक्चर. It can be separately compiled and stored in a library. It can be included in a program. ठीक है. हम कोई भी प्रोग्राम में वो मॉड्यूल इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम में वो मॉड्यूल इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. मॉड्यूल सेगमेंट कैन बी यूज्ड बाय इन्वोकिंग नेम एंड सम पैरामीटर. हम उसको कैसे भी कॉल कर सकते हैं. लाइक हम फंक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे इन्वोक करते हैं? बाय यूजिंग नेम with some parameter. So in that manner we can also include modules and one module can use another module, like one function can use another function. Okay, so this is the concept of modularity. Now next one is software architecture or structure design. Now software architecture also called as structural design and it is a sketchy map of the system. In other terminology, structure design is the hierarchical construction of program modules and the mode in which the module act together and structure of the data that are used by the module. Like here structure design मतलब हमें represent करना है कि पर्टिकुलर मॉड्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी होगी, वो हमें स्केच आउट करनी है. वो मॉड्यूल के साथ रिलेटेड कौन से मॉड्यूल होंगे. ठीक है. पूरा मैप क्रिएट करना है कि डेटा अगर फ्लो होगा तो कौन से मॉड्यूल के साथ लिंक्ड होगा, कौन से डेटाबेस में जाएगा. दैट इज स्ट्रक्चर डिज़ाइन. नाउ द स्ट्रक्चर डिज़ाइन हैव सम प्रॉपर्टीज. लाइक फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज. So these focus on the module of a system and mode in which these modules are put together and interrelated with one another. ठीक है. कौन से मॉड्यूल एक दूसरे पर डिपेंड है, रिलेटेड है, वो यहाँ पे मेंशन करना है. देन एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, लाइक यहाँ पे कौन से मॉड्यूल जो है कैपेसिटी कितनी है, रिलायबल कितना है, एरर फ्री, सिक्योरिटी कितना है, एडेप्टेबिलिटी कितनी है, मतलब वो कितना चेंज एक्सेप्ट कर सकता है. एक बार क्रिएट होने के बाद अगर हमने चेंज किया तो क्या होगा उस पर. ठीक है. तो वो सब एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टी में इंक्लूड है. देन लास्ट वन इज़ फैमिलीज ऑफ रिलेटेड सिस्टम. इट मीन्स कुछ मॉड्यूल्स हैं जो फैमिलियर जैसे हो गए, लाइक लॉगिन, रिपोर्ट्स जनरेट करना है मंथली, ईयरली, वीकली. ठीक है. उसमें सिर्फ टेबल ही चेंज होते हैं, अदरवाइज कोडिंग तो सेम ही होगा. ठीक है. सो
यहाँ पे रिपीटेबल पैटर्न जो है इंक्लूड होती है कुछ मॉड्यूल में, सो उसे कहते हैं फैमिलीज ऑफ रिलेटेड सिस्टम. ओके, सो हियर आई एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर डिज़ाइन. नाउ नेक्स्ट डिज़ाइन concept is control hierarchy और program module. Here particular module के organization पे depend है ये control hierarchy, but it does not represent the procedural aspect of the software. Detailing यहाँ पे describe नहीं करनी है, सिर्फ module को organize कैसे करना है, control hierarchy उसे कहते हैं. ठीक है, so the control relationship amongst module is articulate in the following means, like कौन सा मॉड्यूल किसको कंट्रोल कर रहा है उसके दो तरीके हैं. like the module that control another module. ठीक है, so that module is called as superordinate to it, but a module is controlled by another module, then that module is called as subordinate to the controller. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मॉड्यूल है, ठीक है, ये प्रोसीजर है, यहाँ पे एक मॉड्यूल है. नाउ दिस मॉड्यूल कंट्रोल द अनदर मॉड्यूल, दिस वन सेकंड वन मॉड्यूल को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑर्डिनेट. और ये मॉड्यूल जो है वो कंट्रोल हो रहा है किसके थ्रू, ये मॉड्यूल के थ्रू. तो जो कंट्रोल हो रहा है वो उसको क्या बोलते हैं हम, सब ऑर्डिनेट. ठीक है, क्लियर. नाउ इन दिस कंट्रोल हिरार्की we are going to cover small topic, that is structure partitioning. Now structure partitioning is achieved in two ways, like horizontal partitioning and vertical partitioning. Like here I mentioned two diagram. In this horizontal partitioning में देखो particular system जो है वो divide हो रहा है. ठीक है, फिर ये फंक्शन वन जो है फिर से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है वो होरिजेंटल पार्टीशनिंग है. बट वर्टिकल पार्टीशनिंग में क्या होगा, लाइक ये मॉड्यूल जो है यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर उसके 3 मॉड्यूल, फिर उसके 2 मॉड्यूल. ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन जैसे जैसे लाइक यहाँ से ये मॉड्यूल में डिसीजन होगा कि ये 3 मॉड्यूल में से कहाँ पे फ्लो जाना है, लाइक फ्लो गया यहाँ पे, फिर ये मॉड्यूल में से ये 3 में से कहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करके करके यहाँ पे इफ एल्स सिचुएशन यूज्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल पार्टीशनिंग. ओके, नाउ फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. The control modules are used to coordinate communication between and execution of the function. Now horizontal partitioning characterize separate branches of the module hierarchy for each major program function. Like ये मॉड्यूल के सेपरेट ब्रांच कितने हैं, दिस वन, फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3. ठीक है, सो सिंपलेस्ट वे इज टू पार्टीशनिंग सिस्टम इनटू इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. देन उसके एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू चेक, अगर एरर सॉल्व करनी है तो ईजी होगा, मेंटेन करना और पर्टिकुलर मॉड्यूल को एक्सटेंड करना ईजी होगा. ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज क्या है उसमें, सो मोर डेटा टू बी पास अक्रॉस मल्टीपल इंटरफेसेस. लाइक यहाँ पे प्रोग्राम में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा डेटा जो है वो हमें डिफरेंट मॉड्यूल में पास करना होगा. ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे मॉड्यूल, तो वो भी अच्छी बात नहीं है. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम फ्लो प्रोग्राम पर्टिकुलर जो डेटा है कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहा होगा वो पता नहीं चलेगा. ठीक है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग. नाउ वर्टिकल पार्टीशनिंग में क्या होगा, वर्टिकल पार्टीशनिंग सजेस्ट द कंट्रोल एंड वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टॉप डाउन इन प्रोग्राम स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर हम ये वर्क ये फ्लो को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो टॉप डाउन ही जाएगा, फिर ये जो फ्लो है वो ये 2 फ्लो में आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, उसको बोलते हैं टॉप डाउन मैनर में ही वो आगे जाएगा. ठीक है, देन in vertical partitioning the control modules are located at the top. like if else जहाँ पे कंट्रोल होता है कौन से मॉड्यूल में एंटर करना है वो कंट्रोल टॉप के मॉड्यूल में होता है. ठीक है, एंड देन वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टॉप डाउन इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर.
and that is top level module perform control functions and do little actual processing, while modules that are low in the structure perform all input computational and output tasks, right? जो टॉप लेवल के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, ठीक है, वो कुछ ही कंट्रोल फंक्शंस, लोअर लेवल मॉड्यूल को वो फंक्शंस मॉड्यूल को वो कंट्रोल करेंगे, वाइल जो लोअर लेवल पे जो मॉड्यूल है वो सारे इनपुट एक्सेप्ट करेंगे और आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल पार्टीशनिंग. क्लियर? Now next design concept is data structure. Now data structure, you know that it is the representation of the logical relationship among individual data element. ठीक है, particular data element modules का जो logical relationship create करना है, that is called as data structure. Then next one is software procedure. Now principles and procedures to be used to conduct design and development activities includes some things like the design and development process to be pursued together with assignment of tasks, technique to be used and point walkthrough and reviews are required. Standards for preparation of structure and detailed design specification and supporting prototype including style and formats for diagram and specification. Then procedure for preparing unit test plans and conducting test. Then last one is information hiding. Now information hiding is related to abstraction, right? Abstraction में भी वैसा ही था, हमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट पता होता है, पर्टिकुलर प्रोसेसिंग की जो डिटेल है वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है. सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हाइडिंग मीन्स व्हाट, लाइक मॉड्यूल को ऐसे डिज़ाइन करना है, ठीक है, सो that information enclosed within one module is inaccessible to other module and that do not require such information, right? पर्टिकुलर अगर दूसरे मॉड्यूल पे हम डिपेंड है तो हमें दूसरे मॉड्यूल के इनर प्रोसेस जो है वो पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है. सो आउटर मॉड्यूल से वो हाइड करना है, ठीक है. लाइक हम सी प्रोग्रामिंग में ऐसे ही करते हैं, सी प्लस प्लस में, ठीक है. लाइक थियोरी ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज द हाइडिंग ऑफ डिज़ाइन डिसीजन इन कंप्यूटर प्रोग्राम that are most probable to change, thus protecting other part of the program from change if the design decision is changed. Okay, so in short, information contained within a module is inaccessible to the module that have no need for such information. Okay, ठीक है, that is called as information hiding. Okay, so here I complete the design concept in software engineering. Hope you understand this. Thank you.